میں میرے والد اگرچہ آ نہ سکے عرس میں میرے والد، سلام لیجئے ان کا انہی کے دل بر سے، سلام لیجئے ان کا انہی کے دل بر سے، ملے گی یہ تو مجاہد کی نگہ انور سے۔ آج یہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں، کوئی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ اختر ضیائی صاحب کی بھرپور دعائیں چاہتا ہوں۔ اگر باتوں میں سچائی ہو، حضرات آپ یقین مانیے میں لطیفہ سنانے کا عادی نہیں ہوں، ادھر ادھر کی کوئی بات کرتا بھی نہیں ہوں، اپنے عنوان کے محور پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اسی حساب سے گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ اگر باتوں میں سچائی ہو تو قبول کرنا۔ اللہ اکبر، آپ قربان جائیں، جلسے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد سامنے آنا چاہیے۔ اس وقت میرے سامنے 95% نوجوان بچے میرے سامنے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے کچھ باتیں سن کے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی سے وابستہ ایک خاندان ہے، آپ کی زندگی سے وابستہ ایک پورا گھرانہ ہے، آپ کی زندگی سے وابستہ ایک سماج ہے، آپ کی زندگی سے وابستہ ایک معاشرہ ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو حسن کیسے دو گے، آپ اپنے سماج کو خوبصورت کیسے بناؤ گے، آپ اپنے محلے کے لوگوں کو راستے پہ کیسے لاؤ گے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی میں حسن پیدا کرو، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ اگر آپ بدل گئے تو معاشرہ بدلے گا، آپ بدل گئے تو سماج بدلے گا، آپ بدل گئے تو سوسائٹی بدلے گی۔ آپ اپنے آپ کو بدلیے۔ کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ آج معاشرے میں شرابی کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں جواری کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں بدچلن لوگ کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں بدتمیز اور بے ادب بچے کیوں ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں جانتا ہوں سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ کی غلامی آپ کو اس کی سند مل چکی ہے، وہی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں بارگاہ مجاہد ملت میں غلامی کی سند پانے والے آج میری باتیں آپ سن کے جاؤ، پھر سچے غلام اپنے آپ کو آپ تو کہو گے۔ کل اگر آپ نے اپنے آپ کو سنوار لیا، سرکار مجاہد ملت خود فرمائیں گے یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے خواب ہیں، یہ میرے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے بھائی اور بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بچانا ہے، اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ کتنے لوگ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ بچنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ کہ جہنم سے بچنے کا آپ نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ آپ نے جہنم سے بچنے کا کون سا راستہ اختیار کر رکھا ہے؟ کون سا طریقہ اپنی زندگی میں اپنا کے رکھا ہے جو آپ جہنم سے بچو گے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤ گے؟ اپنے کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے والدین کو بچانا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کی دیوانگی کی رٹ لگانے والو، اے اپنے آپ کو نبی کے غلام کہلانے والو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا کلمہ پڑھنے والا جہنم جائے گا؟ کیا نبی کی غلامی کرنے والا جہنم جائے گا؟ کیا ایمان والا جہنم جائے گا؟ کیا کلمہ پڑھنے والا جہنم جائے گا؟ کیا نبی سے جو نبی کا غلام ہوگا وہ جہنم جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پھر پروردگار عالم کو فرما رہا ہے اس طریقے سے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کافر سے تو نہیں فرمایا ہے، منافقین سے تو نہیں فرمایا ہے، فرمایا ایمان والوں سے۔ ذرا اندازہ لگاؤ پیارے مسلمانوں، ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، میرے مالک، میرے پروردگار، اے معبود حقیقی، تو ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے میرے مالک تو کلمہ پڑھنے والوں سے فرما رہا ہے، اے میرے پالنہار تو محمد کے غلاموں سے فرما رہا ہے۔ اے ایمان والوں بچا
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اے میرے مالک، کیا تو نے جہنم ایمان والوں کے لیے بنایا ہے؟ کیا ایمان والوں کے لیے جہنم بنایا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم بنایا ہے؟ کیا نبی کے غلاموں کے لیے جہنم بنایا ہے؟ جواب ملے گا نہیں نہیں۔ ایمان والوں کے لیے جہنم بنایا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم بنایا نہیں ہے، نبی سے غلامی کرنے والوں کے لیے جہنم بنایا نہیں ہے۔ جہنم تو کفار کے لیے بنا ہے، جہنم مشرکین کے لیے بنا ہے، جہنم منافقین کے لیے بنا ہے، جہنم گستاخوں کے لیے بنا ہے۔ تو پھر آپ سوال کیجئے میرے پروردگار، لیکن تو فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، کلمہ پڑھنے والوں سے فرما رہا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو نبی کے غلاموں سے فرما رہا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو جواب ملے گا نادان تو نے سمجھا نہیں۔ تو کلمہ تو پڑھتا ہے مگر کلمے کا تقاضا کیا ہے نہیں سمجھا۔ تو نبی کے غلام ہونے کی بات کرتا ہے مگر غلامی کا تقاضا کیا ہے تو نے سمجھا نہیں ہے۔ تو کلمہ تو پڑھتا ہے، تو ایمان تو لایا ہے مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے اسے سمجھا نہیں ہے۔ غور سے میرے جملے کو سنیے گا، میں آپ کی تعریف کر کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ آپ کی خامی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خرابی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ مطلب کیا ہوا؟ تو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، نبی کی غلامی کی تو بات کر رہا ہے، تو ایمان والا تو اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے نہیں جانا، کلمے کا تقاضا کیا ہے نہیں جانا، نبی کی غلامی کا تقاضا کیا ہے نہیں سمجھا۔ نبی کی غلامی کا تقاضا یہ ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے، وہ غدار نہیں ہوتا ہے، وہ چغلخور نہیں ہوتا ہے، وہ حرام خور نہیں ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، محمد کا غلام ہوتا ہے، وفادار مصطفیٰ۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچائیں گے میں بتاؤں آپ کو؟ کیسے بچیں گے بتاؤں؟ کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کر ایک بار بتائیں تو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو طریقہ اپنانا ہوگا نا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم ایمان والے ہیں، پھر بھی جہنم سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے مالک، ہم بچنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ مولا اس جہنم میں ہمیں نہ ڈال جو جہنم منافقوں کے لیے بنا ہے، جو کافروں کے لیے بنا ہے، جو مشرکوں کے لیے بنا ہے۔ اس جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے آپ؟ آؤ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ دو کام پوری زندگی میں کرنا ہے، چاہے وہ 12 سال کی عمر کا لڑکا ہو، چاہے وہ 25 سال کا نوجوان ہو، چاہے وہ 50 سال کا ادھیڑ ہو، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، ہر شخص کے لیے ایک ہی کام ہے، ہر شخص کے لیے ایک ہی کام ہے۔ دو کام پوری زندگی میں کرنا ہے، پوری زندگی میں دو کام۔ کوئی کام کرو نہ کرو، یہ دو کام اگر آپ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے 100 سال کی عمر پالے آدمی، مگر دو ہی کام کرو۔ دو کام اگر کر پا لیا آپ نے، اگر دو کام کر لیا تو آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ آپ کہیں گے کون سا کام کرنا ہے؟ بس دو کام یہ ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہونی چاہیے، حقوق اللہ ادا کرو۔ جو اللہ کے حقوق بندوں کے اوپر ہیں، بندہ ان حقوق کو ادا کر دے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کیجئے، جو بندے کا حق بندے کے اوپر ہے وہ بندہ حق ادا کر دے۔ بس دو ہی کام کرنا ہے پوری زندگی میں، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں، حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز کا وقت آئے تو ادا کر لیجئے، رمضان آئے تو روزے رکھ لیجئے، پیسے ہو تو حج کو چلے جائیے، دولت ہو تو زکوٰۃ دیتے رہیے۔ ارے دوستو، غور سے میری باتوں کو سننا، اگر سچائی ہو تو قبول کرنا۔ حقوق اللہ ادا کرتے رہیے، اللہ کا جو حق ہے بندوں پہ وہ بندہ حق ادا کرتا رہے، جہنم کی آگ سے بچتا چلا جائے گا۔ دوسرا کام بتایا حقوق العباد
बाद हुकूकुल इबाद ये है, एक बेटे का जो बाप के ऊपर हक है, बाप अपने बेटे का हक अदा कर दे, माँ अपनी बेटी का हक अदा कर दे, बेटी अपनी माँ का हक अदा कर दे, शौहर अपनी बीवी का हक अदा कर दे, बीवी अपने शौहर का हक अदा कर दे, उस्ताद शागिर्द का हक अदा कर दे, शागिर्द उस्ताद का हक अदा कर दे। जो गरीब का हक है गरीब को दे दो, जो लाचार का हक है उसे दे दो, जो मजबूर का हक है उसे दे दो, जो यतीम का हक है उसे दे दो, जो बाप का हक है उसे दे दो, जो भाई का हक है उसे दे दो, जो बहनों का हक है उसे दे दो, जो पड़ोसी का हक है उसे दे दो। ये बंदों के हुकूक जो हैं, इन बंदों के हुकूक अदा करते चले जाएं, आप जहन्नम की आग से बचते चले जाएंगे। मगर मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आकर के उलमाए किराम की खिदमत में लोग कहा करते हैं, हजरत मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता, मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। मैं उन बाप से कहना चाहता हूँ, ए बेटे के बापो, ए बेटे के बाप, जरा गौर से मेरी बातें सुनना। आपके ऊपर भी तो आपके बेटे का हक है, आप अपने बेटों से अपना हक वसूल करना चाहते हो कि मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता है। ए बेटे के बाप, आपने तो बेटे का हक अदा नहीं किया, पहले बाप बेटे का हक अदा करेगा, बाद में बेटा बाप का हक अदा करेगा। अगर बेटा बाप का हक अदा नहीं करता तो बाप शिकायत लेके दारुल इफ्ता पहुंच जाता है कि बेटा हक अदा नहीं करता। मगर ए बाप बेटे से मोहब्बत करने वाले, आपने तो अपने बेटे का हक मार दिया है। आपने अगर बेटे का हक अदा किया होता तो आज आपका बेटा भी आपका हक अदा करता। हक मारा चला जा रहा है, हक तलफी हो रही है। आप मुझसे सवाल करेंगे मौलवी साहब, कहाँ हमने बेटे का हक मार दिया है, हमने कहाँ बेटे का हक मार दिया है जो आप इस तरीके की बात करते हैं। हजरात आप ये कहेंगे मौलवी साहब आप अजीब सी बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा अजीब बात नहीं सच्ची बात कर रहा हूँ। आज एक शहर आता है कहता है बीवी मेरा हक अदा नहीं करती है, बीवी की शिकायत लोग लेके पहुंच जाते हैं, बहुत जुबान लड़ाती है। मैं कहता हूँ ए शौहर हो, तुमने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया है। अगर तुमने अपनी बीवी का हक अदा किया होता तो तेरी बीवी तुझसे जुबान नहीं लड़ाती, तेरी बीवी भी तेरा हक अदा करते। आप मुझसे कहेंगे मौलवी साहब अजीब इंसान मालूम होते हो, हमारे यहाँ आए हो, न किसी बाप से मुलाकात है, न किसी की बीवी से मुलाकात है, तुमने कैसे समझ लिया कि हमने बेटे का हक अदा नहीं किया, कैसे समझ लिया कि हमने बीवी का हक अदा नहीं किया। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, मैंने देखा नहीं है, मैंने आपकी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, मैंने आपके बच्चों से मुलाकात नहीं किया है, मगर मैं ये जानता हूँ समाज में शराबी तो हैं, समाज में जुआरी तो हैं, हमारे माशरे में बेअदब बच्चे तो हैं, हमारे माशरे में बदतमीज बच्चे तो हैं, हमारे माशरे में माँ बाप के नाफरमान बच्चे तो हैं, हमारे माशरे में चुगलखोर बच्चे तो हैं, हमारे माशरे में बच्चलन बच्चे तो हैं, हमारे माशरे में बेनमाजी बच्चे तो हैं, हमारे माशरे में आवारा बच्चे तो हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ ये आवारा कैसे हो गया, ये बच्चलन कैसे हो गया, ये बदतमीज कैसे हो गया, ये बेअदब कैसे हो गया। इससे पता चल गया बाप जब बेटे का हक अदा करता है तब बेटा बेनमाजी नहीं होता है, बेटा बेअदब नहीं होता है, बेटा शराबी नहीं होता है। बाप जब बेटे का हक अदा करता है तब बेटा नमाजी होता है, तब बेटा तहज्जुद लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे हजरात आप देखें कहाँ कहाँ हमसे खता हो रही है। हमने बेटे का हक अदा नहीं किया तो बेटा बिगड़ेगा, हमने बीवी का हक अदा नहीं किया बीवी बच्चलन होगी, बीवी बातों में नहीं रहेगी, बीवी जुबान लड़ाएगी। दोस्तों आपका कहना ये होगा मौलाना कैसे आपको पता चल गया, आप कहते हैं कि बच्चलन और बेतमीज बच्चे हमारे माशरे में हैं, आखिर ये हुआ कैसे, हक कैसे हमने अदा नहीं किया। हमने तो 2000 की साड़ी इस साल दिया है ईद में, कोई कहेगा 10,000 की साड़ी ईद में दिया है, हमने उसके नाम से जमीन खरीद रखा है, उसके नाम से मैंने मकान बनवा के रखा है। तुम कैसे समझते हो कि बीवी का हक अदा नहीं किया। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं, मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो 4 व्हीलर से जाते हैं, 2000 रुपए मीटर के कपड़े अपने बच्चों को पहनाता हूँ, काजू किशमिश बादाम घर में पड़ा रहता है, मेरे बच्चे की खुराक बना करते हैं। अब ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं खिलाता हूँ, फिर कैसे हक अदा नहीं किया। मेरे दोस्तों मैं यही कहूँगा इस्लाम का रिज़्क़े हलाल देखो, रिज़्क़े हलाल की बरकतों का अंदाजा आपको अब तक नहीं हुआ होगा। ऐ नौजवान दोस्तों अभी से ज़हन बना लो, हमें हराम नहीं खाना
है। हजरत गिरामी, हक अदा करने का मतलब ये होता है, एक बाप अपने बेटे को मेहनत की कमाई खिलाया तो गोया हक अदा हो गया। हराम कमाई खिलाओ, काजू किशमिश बादाम खिलाओ, मगर बेटे तेरे बेअदब हो जाएंगे, बदतमीज हो जाएंगे। दोस्त और बुजुर्गों, आप कहेंगे हराम कैसे खिलाया? मैंने हराम कैसे खिलाया? चोरी तो नहीं किया है, डाका तो नहीं डाला है। अभी आपको मैं बताऊंगा, आपको एहसास भी नहीं होता, हराम रोजी मेरे घर आ जाती है, नाजायज लुक्मा मेरे घर चला आता है। आओ मैं आपको बताता हूँ प्यारे मुसलमानों, पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेटा बेअदब कैसे होता है, बदतमीज कैसे होता है। हराम रोजी जब इंसान खाता है, जब हलाल रोजी खाता है तो उसका असर अच्छा होता है, हराम खाता है तो असर उसका बुरा होता है। जब अपने बच्चों को हलाल खिलाओगे तो हक अदा किया जाएगा, हक अदा किया जाएगा। हराम खिलाओगे तो हक मारा चला गया। आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया, आपने अपनी बीवी को हराम खिलाया, नतीजा ये हुआ पैदा होने वाला जो बच्चा है, जो पैदा हुआ वो बेनमाजी बन के रह गया, वो बेअदब होके रह गया, वो बदतमीज होके रह गया, वो नाफरमान होके रह गया। नौजवान दोस्तों, आप जरा गौर से मेरी बातों को थोड़ी देर सुनना, मैं ज्यादा देर आपका वक्त लेना भी नहीं चाहता। एक हाजी साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं मदरसे में था, हाजी साहब तशरीफ लाए और आकर के रोने लगे। यहाँ पर कोई हाजी साहब हो तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हाजी साहब जो मेरे मदरसे में आए थे, मैं उस हाजी साहब की बात कर रहा हूँ। आए और रोने लगे, वो चीखने चिल्लाने लगे। मैंने कहा हाजी साहब मामला क्या है, क्यों रो रहे हैं आप, क्यों कलेजा पीट रहे हैं आप? वो जवाब देते हैं मौलाना मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बर्बाद हो गए आप, कैसे बर्बाद हो गए आप, कैसे लुट गए आप? जवाब सुनो हाजी साहब का। उन्होंने कहा क्या बताऊं, इसी साल मैंने ताज़ा ताज़ा हज किया है, 5 वक्त मस्जिद जाके नमाज अदा किया करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ा करता हूँ, इशराक भी पढ़ा करता हूँ, तौबीन भी पढ़ा करता हूँ, कुरान की तिलावत भी पाबंदी से किया करता हूँ। माशरे में जब चलता हूँ लोग मेरे लिए पलके बिछा दिया करते हैं, समाज में बड़ी इज्जत है मेरी, बड़े एहतराम की निगाह से लोग मुझे देखा करते हैं, मगर मेरे बेटे ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा कि मेरा बेटा शराबी हो गया है। शिकायत तो लोग लेकर के आते थे, जब शिकायत लेके आते थे लोग, ऐसा लगता था जमीन फट जाए मैं उसके अंदर चला जाऊं, मगर क्या करता, बर्दाश्त करता रहा। आपके बेटा ही तो है, क्या करूं? लेकिन आज तो हद पार कर दी, आज वो शराब खाने चला गया। शराब पी के जब घर आया, मस्ती में था, वो नशे में था, अपनी माँ को गाली देना शुरू किया, अपनी माँ को गाली भी दिया और मुझसे कहा ए बुढ़ा तू घर से निकल जा। आप जरा सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, एक बेटा जब अपने बाप से कहे ए बुढ़ा तू घर से निकल जा, बोलो बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा जब माँ को गाली दे तो बोलो माँ की कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा अपनी माँ को गाली दे रहा है, एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल रहा है। हजरात, वो बेटा नहीं, उसका नशा घर से निकाल रहा है, उसका नशा उसे गाली दे रहा है। ये नशे का आदि कैसे हो गया? हमने हक अदा नहीं किया तो नशे का आदि हो गया, हमने हक अदा नहीं किया तो नाफरमान हो गया। आओ दिल की बात सुनो प्यारे मुसलमानों। हाजी साहब ने कहा कि वो बेअदब हो गया, उसने गाली देना शुरू किया, उससे कहा कि बुढ़े घर से निकल जा। अब इससे और ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? अब तो जीने को जी नहीं चाहता है। कोई तावीज हो तो दे दीजिए, कोई नुस्खा हो तो दे दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए कि शराब की लत उससे खत्म हो जाए, वो नशे का आदी हो गया है, नशा छोड़ दे। मैंने कहा हाजी साहब ये बताइए आपका बेटा शराबी कैसे हो गया, नशे का आदी कैसे हो गया? कहा मुझको तो कुछ भी पता नहीं है, मुझको तो कुछ भी खबर नहीं है। मैंने कहा आपको पता नहीं कि शराबी कैसे हो गया? मैंने कहा आपको पता नहीं कि आपका बेटा नाफरमान कैसे हो गया? क्यों बाप पे डंडे उठाना शुरू कर दिया? आओ सरकार की एक हदीस पाक का टुकड़ा मैंने पेश किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो समर गया तो सब समर गया, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो कौन सा हिस्सा है, जिसका वो कौन सा हिस्सा है गोश्त का, जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके संवरने से सब संवर जाता है? आए दो
यहाँ इरशाद फरमाते हैं वो दिल है, दिल संवर जाता है तो सब संवर जाता है, दिल बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़े, दिल के संवरने से सब संवर जाए, दिल बिगड़ जाए तो आंख बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो समाज बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो हाथ बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो पाँव बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो शऊर बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो फिक्र बिगड़ जाए, अगर दिल संवर जाए तो आंख संवर जाती है, दिल बिगड़ जाए दिल संवर जाए तो जुबान संवर जाती है, दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तब तो बेनमाजी होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो बदतमीज होता है, दिल बिगड़ता है तो शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तो जुआरी होता है, दिल बिगड़ता है तो ज़िनाकार होता है, दिल बिगड़ता है तो गुनहगार होता है, दिल बिगड़ता है तो खताकार होता है। जब दिल बिगड़ता है तब कोई अबू जहल बनता है, दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई उतबा बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई शेबा बनता है, दिल बिगड़ता है तब कोई वसीम बिस्री बनता है, दिल जब बिगड़ता है तो कोई यजीद बनता है। लेकिन जब दिल संवरता है कोई अबू बकर बनता है, दिल संवरता है तो उमर बनता है, दिल संवरता है तो उस्मान बनता है, दिल संवरता है तो अली बनता है, दिल संवरता है तो बिलाल बनता है, दिल संवरता है तो सलमान अली बनता है, दिल संवरता है तो आला हजरत होता है, दिल संवरता है तो मुजाहिद मिल्लत होता है, दिल संवरता है तो हबीब मिल्लत होता है। दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। सही फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। दिल के संवरने से सब संवरता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ता है। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, आका ये भी तो बताएं कैसे दिल संवर जाता है, इंसान का दिल कैसे बिगड़ जाता है। गौर से सुनिएगा या रसूल अल्लाह, अगर दिल के संवरने से सब संवर जाता है, अगर दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, आका दिल संवर कैसे जाता है, किसी का दिल बिगड़ कैसे जाता है? मेरे आका जवाब सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं जब हलाल कोई खाता है तो दिल संवर जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। ऐ लोगों, न खुद हराम खाओ न अपने बच्चों को खिलाओ। आप कहेंगे मौलाना मैंने डाका तो नहीं डाला, मैंने चोरी तो नहीं किया, मैंने तो हराम रोजी अपने घर नहीं लाया। मैं आपसे ये कहूँगा प्यारे मुसलमानों, सुनो सुनो, आपको पता भी नहीं चलता और हराम हमारे घर चला आता है, हमें एहसास नहीं होता। अगर बुरा न लगे तो एक सच्ची बात कहूँ आपसे, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अगर सर्विस है, ड्यूटी होती है, सुबह के 8 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ड्यूटी करना, ऐसा होता है क्या? 8 घंटे ड्यूटी, मगर आदमी क्या करता है? 7 घंटे ड्यूटी किया और 1 घंटा पहले फैक्ट्री से निकल गया। कैसे निकला? जो उससे ऊंचे ओहदे का अफसर होता है उससे मिला, मैं आपको ये दे दूंगा, पान खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ सहूलतें आपने दे दी और हर रोज 1 घंटा मामूल बना लिया। 1 घंटा पहले आप फैक्ट्री से निकल गए, ड्यूटी 7 घंटे में खत्म। आपने कंपनी से कितने पैसे वसूल किए? 8 घंटे के। आपने ड्यूटी की है 7 घंटे की और पैसे वसूल किया 8 घंटे के। 1 घंटे के जो रुपए आपके घर आ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि वो आपके लिए जायज है कि नाजायज? मजदूरी करने आप जाते हो, 5 घंटे ड्यूटी करना है, 7 घंटे ड्यूटी करना है, 8 घंटे ड्यूटी करना है, मगर क्या किया? 10 मिनट चाय नोशी में, 10 मिनट तंबाकू खाने में, 5 मिनट पुड़िया खाने में, 2-4-10 मिनट इस्तिंजा और बैतुल खला में आपने यूं ही वक्त गुजार दिया। जो काम 8 घंटे में होना चाहिए वो 10 घंटे में भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपने वहां भी घपला किया। आपने ड्यूटी की 6 घंटे, 8 घंटे की मजदूरी आप अपने घर लेके आ रखे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो मेहनत से पैसे वसूल किया है। पूछ लीजिए मुफ्तियाने किराम से, जो ऐसी ड्यूटी करके 8 घंटे के पैसे वसूल करके लाता हो, क्या उसके लिए जायज है? क्या बात है?
سمجھ رہے ہیں کہ حلال لے کے آیا، مگر وہ حلال سب کے سب آپ کے بیکار ہوئے۔ جو محنت کی تھی آپ نے، اس محنت کے پیسے میں وہ ناجائز پیسے مل گئے، سارے کے سارے پیسے آپ کے اسی طریقے کے ہو گئے جو آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ ٹھیلے پہ پھل بیچتے ہو یا کوئی بھی سامان بیچتے ہو، مثال کے طور پہ رمضان شریف آتا ہے، پپیتا آپ نے خریدا، سڑک کے کنارے اپنا ٹھیلا لگایا اور آواز لگایا، میرے پپیتے گارنٹی کے میٹھے۔ علامہ اختر ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ تو گارنٹی کے میٹھے کہہ رہا ہے، ایک دن میں افطار کے وقت 1 kg پپیتے کی ضرورت ہے، مگر بڑا سستا ہے، گارنٹی کا میٹھا بھی ہے، 5 kg لے لیتے ہیں۔ لے کے چلے حضرت، اور جب گھر پہنچے اور افطار کے وقت اس پپیتے کو چاک کیا ہے تو بجائے میٹھے ہونے کے وہ تو پھیکے نکلے۔ بیچنے والوں، تم نے پپیتا چاک کر کے نہیں دیکھا تھا یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے، بغیر چاک کیے اور ٹیسٹ اور ذائقہ محسوس کیے آپ نے گارنٹی کر کے بیچ دیا ہے، آپ کے لیے وہ پیسے جائز نہیں ہے۔ کیا بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، محنت کی ساری کمائی آپ کی آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے تجارت کیا اور پیسے وصول کیے ہیں، محنت کر کے پیسے لائے ہیں۔ حضرات، صحیح اور غلط کا فیصلہ یہاں جو دل ہے نا وہ دل کرتا ہے۔ آپ کی زبان صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گی، آپ کا دل صحیح فیصلہ کرے گا۔ آؤ میری بات غور سے سنو، توجہ ہے۔ حلال لقمے کا اثر اچھا ہوتا ہے، حرام لقمے کا اثر برا ہوتا ہے۔ 15 منٹ ٹائم ہے، 15 منٹ میرا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، سنیں گے آپ لوگ؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے، حرام لقمے کا اثر برا ہوتا ہے، حلال لقمے کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو محنت کی کمائی کھلاؤ، اپنی بیوی کو محنت کی کمائی کھلاؤ۔ دیکھو باپ کہاں مس کرتا ہے، باپ کہاں غلط زندگی گزارتا ہے، باپ کہاں اپنی بیوی کا حق مارتا ہے، باپ کہاں اپنے بیٹے کا حق مارتا ہے۔ بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا ہے، باپ اس کا حق مار دیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیٹا تو بے ادب ہو گیا، بیٹا بدتمیز ہو گیا۔ اے نوجوان دوستو، غور سے میری باتوں کو سننا، آپ توجہ سے سنیے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں دونوں شاعر آپ کی خدمت میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حلال لقمے کا اثر اچھا ہوتا ہے، حرام لقمے کا اثر برا ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ زمانہ بھی میرے آقا ہی کا ہے، میرے سرکار ہی کا زمانہ ہے، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو زمانہ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب کا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے نوح، نوح نام کا وہ شخص ہے، پیشے کا وہ جج ہے، کام دھام اس کا یہی ہے، وہ پیشے کا جج ہے، نوح اس کا نام ہے۔ اب اس نوح کا عہدہ اونچا ہوتا چلا گیا، پوسٹ بڑھتا چلا گیا، پرمیشن ہوتا چلا گیا، نتیجہ یہ ہوا آخر زندگی میں جب اس کے انقلاب آیا تو وہ جسٹس بنا دیے گئے۔ دنیا سے نوح جسٹس کے نام سے یاد کرنے لگی ہے، نوح جسٹس کے نام سے اسے دنیا یاد کرتی ہے۔ وہ نوح جسٹس کے گھر ایک بیٹی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ آپ کی ہے تو حضرات گرامی غور سے سنیے گا، میرے ایک ایک جملے کو آپ سنیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے یہ بیان سن لیا ہو، سن رکھا ہو آپ نے، ہو سکتا ہے آپ تو جلسے میں بہت جایا کرتے ہیں، مگر سنیے آپ، اس لیے سنیے، اس لیے سنیے، پھر آپ کو اس طریقے کی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، آپ سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں رہنے کے عادی ہو، آپ ایک اچھا انسان کہلاؤ، ایک سچا انسان کہلاؤ، آپ اچھے بن کے رہو، سرکار مجاہد ملت کے دیوانے بن کے رہو۔ مجاہد ملت کے دیوانوں، غور سے باتوں کو سننا۔ نوح جسٹس کی وہ بیٹی فاطمہ ہے، سن شعور کو جب پہنچتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، نوح جسٹس کو خیال آیا اب اس کے لیے ایک دولہا تلاش کیا جائے۔ نوح جسٹس ایک داماد کی تلاش میں نکلتا ہے، محلے کا چکر لگایا، قصبے کا چکر لگایا، شہر کا جائزہ لیا، کوئی ایسا نوجوان مل جائے جو دکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور دولت والا بھی ہو، سرمایہ دار بھی ہو، میرے لیول کا ہونا چاہیے، میری برابری کا ہونا چاہیے، پیسے کے حساب سے میرے لیول کا ہو، ایسا انسان تلاش
तलाश रहा है। नूह जस्टिस ढूंढते रहे, जब देखता है दिखने में खूबसूरत मालूम हो रहा है तो वो इंसान फिर दौलत वाला नहीं मिलता। अगर दौलत वाला मिलता है तो दिखने में खूबसूरत नहीं मिलता। नूह जस्टिस है अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा तलाश करता जा रहा है। कई महीने गुजर गए, जब देखा अपने लेवल का नहीं मिलता है, थक हार के एक रोज अपनी बेटी से वो पूछता है, ए मेरी बेटी फातिमा बताओ तेरे लिए कैसा दूल्हा तलाश करूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं, तेरे लिए पर तलाश करना चाहता हूं, मैं बताओ मैं तेरे लिए कैसा दूल्हा तलाश करूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। बेटी फातिमा जवाब देती है, अब्बू आज तक मैंने अपनी मर्जी से आपसे कुछ कहा ही नहीं है, आपने जब जो कुछ कहा मैंने उसे मान लिया है, कोई सामान की भी फरमाइश नहीं की, आपने जब जो ला के दिया मैंने उसे कबूल कर लिया है। आज पूछने की क्या जरूरत पड़ गई, मेरे लिए जैसे दूल्हे का इंतखाब करेंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी, आप जाके और ढूंढ लीजिए। बाप कहता है लगी मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपनी खुशी का इजहार करो, तुम भी अपनी तबीयत का इजहार करो, आखिर तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना है। तेरा दूल्हा हो तो कैसा हो, तेरा शौहर हो तो कैसा हो, तेरी जिंदगी का साथी हो तो कैसा हो। बेटी फातिमा ने देखा मेरा बाप इसरार पर इसरार करते जा रहा है। बेटी फातिमा कहती है आज की बेटी होती तो ये कहती मेरा दूल्हा ऐसा होना चाहिए, अगर बाप पैसे वाला है तो बेटी यही कहती है मेरा दूल्हा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा दूल्हा इंजीनियर होना चाहिए, मेरा दूल्हा प्रोफेसर होना चाहिए, या तो ये कहेगा कि मेरा दूल्हा डॉक्टर होना चाहिए, या मेरा दूल्हा प्रोफेसर होना चाहिए, या मेरा दूल्हा फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए। एक बेटी ऐसा ही कहेगी, मगर कौन से सुनना प्यारे मुसलमानों, फातिमा अपने बाप से क्या कहती है, फातिमा अपने बाप नूह जस्टिस से कहती है, ए मेरे अब्बू अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे सुनिए, मेरा दूल्हा कैसा हो, मेरा शौहर कैसा हो, मेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, ए फातिमा जल्दी बता ताकि मैं तेरे लिए दूल्हा तलाश करूं। फातिमा कहती है अब्बू मेरे लिए जो दूल्हा आप तलाश करेंगे वक्त का नमाजी होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए, कुरान की तिलावत का आदी होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए, हलाल खाने वाला होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए। नूह जस्टिस अपने घर से निकला है, तलाश कर रहा है, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो वक्त का नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा शिआर भी हो, वक्त का नमाजी भी हो, पाबंद शरीयत भी हो, हलाल खाने वाला भी हो। मगर क्या देखते हैं, एक खूबी मिलती है दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है तो चौथी नहीं, तलाश करते जा रहे हैं। शहर का जायजा लिया, मोहल्ले का जायजा लिया, कस्बे का जायजा लिया, थक गए हार गए, पलट के आते हैं बेटी क्या करूं, तूने ऐसे दूल्हे का इंतखाब करने की बात की है, तलाश तो करता हूं मगर एक खूबी दिखती है दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तीसरी नहीं, तीसरी दिखती है चौथी नहीं, कहां जाऊं, कैसे तलाश करूं, कैसे तलाश करूं, कैसे ढूंढूं। बेटी फातिमा जवाब देती है, एक एक जुमला सुनना। बेटी कहती है अब्बू आपको ढूंढने का तरीका मालूम नहीं है, तलाश करने का आपको तरीका मालूम नहीं है। ए बेटी कैसे तलाश करूं, अब्बू जान घर से तलाश करना शुरू कीजिए मिल जाएगा, घर से तलाश करना शुरू कीजिए मिल जाएगा। मेरी बेटी घर से तलाश करूं, घर ही से तो निकला था, अपनी तबीयत से निकला था तो घर से निकला था, जब तूने ख्वाहिश का इजहार किया तो घर ही से निकला था। अब जरा सा यहाँ पे रुक के एक बात करूं, नूह जस्टिस के घर में नूह जस्टिस की बीवी का इंतकाल हो चुका था, उसका कोई बेटा भी नहीं था, उसके रिश्तेदार में कोई नहीं था, उसके घर में एक उसकी बेटी रहती थी जिसका नाम फातिमा था, एक नौकर रहता था उसका नाम मुबारक था। नूह जस्टिस के घर में 3 लोग रहा करते थे, एक नूह जस्टिस रहा करता था, दूसरा उसकी बेटी रहा करती थी, तीसरे में उसका नौकर उसका गुलाम मुबारक रहा करता था। अब नूह जस्टिस की बेटी का जवाब सुनो। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा कहती है, ए अब्बू जान तलाश करने का तरीका ये है, अपने घर से निकल के, मेरी बेटी घर से तो निकला था, घर ही से निकला था, खुद से निकला तो घर से निकला, तूने निशानदेही की तो घर से निकला। ए अब्बू जान आपने समझा नहीं, आपने मेरे गुल्ले के नो को पलक को देखा नहीं, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रही हूँ। मेरी बेटी बताओ मैं क्या समझ रही हूँ, घर से तलाश कीजिए अब्बू जान, मेरे जुमले पे गौर कीजिए। आ गए हैं दोनों मेहमान, अब आप समाप्त फरमाएंगे 5 से 10 मिनट में, मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो है। सुभान अल्लाह, एक बार जरा लहर के बोले तो या रसूल अल्लाह, हाथों को फिदा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह।
रसूल जरा अल्लाह। ऊंची बोले या रसूल अल्लाह, जरा ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा अब्बू जान घर से तलाश कीजिए। अब उन्होंने सोचा लगता है मेरी बेटी खानदान में किसी को पसंद किया है, किसी को रिश्तेदार में पसंद कर लिया है, या तो फिर मोहल्ले में किसी को पसंद किया है। पड़ोस में देखा कोई ना मिला, खानदान का जायजा लिया कोई ऐसा नौजवान नहीं, रिश्तेदार को देख लिया कोई ऐसा नौजवान नहीं। हार के फिर आ जाते हैं, ए बेटी मैंने खानदान में भी देख लिया कोई ऐसा नौजवान नहीं है जिसके अंदर इतनी खूबी पाई जा रही हो, रिश्तेदार में भी देख लिया कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतनी खूबी पाई जा रही हो। मैंने अपने पड़ोस का भी जायजा ले लिया कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतनी खूबी पाई जाती हो। ए मेरे अब्बू, मैंने ये कब कहा था कि खानदान में देखो, मैंने कब कहा था रिश्तेदार में देखो, मैंने कब कहा था कि पड़ोस में देखो, मैंने कहा था घर से तलाश करना शुरू कीजिए। अल्लाह अकबर। वो जवाब देती है घर से तलाश कीजिए। नूह जस्टिस के दिमाग ठिकाने लग गए, ये घर घर की बात कर रही है, आखिर घर से मुराद क्या है? अगर घर से मुराद रिश्तेदार है तो नहीं है, अगर घर से मुराद खानदान है तो वहाँ भी नहीं है, अगर घर से मुराद मोहल्ला है तो वहाँ भी नहीं है, घर में तो कोई रहता नहीं है। एक मैं रहता हूँ, एक मेरी बेटी फातिमा रहती है, और तो कोई रहता की नहीं है। फिर दूल्हा कहाँ तलाश करने जाए? हाँ, एक मेरा नौकर जरूर रहता है, एक मेरा गुलाम मेरे घर में जरूर रहता है। जैसे कि मुबारक की तरफ नजर गई है, अपने गुलाम पे दिमाग पहुंचा है, फिक्र अपने गुलाम की तरफ पहुंची है कि मेरे घर में एक गुलाम भी रहता है। फौरन दिमाग काम करता है, मेरा गुलाम मुबारक ऐसा है जो वक्त का नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, तक़वा शिआर भी है, कुरान की तिलावत का आदी भी है, वो तहज्जुददार भी है, तक़वा शिआर भी है, कुरान की तिलावत का आदी भी है, हलाल खाने वाला भी है, नबी का वफादार भी है। अचानक वो बोल पड़ा, ए मेरी बेटी फातिमा, कहीं तू मेरे गुलाम की तो बात नहीं कर रखी है, मेरे नौकर की तो बात नहीं कर रखी है, मेरे चाकर की तो बात नहीं कर रखी है। बेटी जवाब देती है, ए मेरे अब्बू, मैं आपके गुलाम की बात कर रही हूँ कि नहीं, इसकी खबर मुझे नहीं है। आपके नौकर की बात कर रही हूँ कि नहीं, इसकी खबर मुझे नहीं है। मैं आपके चाकर की बात कर रही हूँ कि नहीं, इसकी खबर मुझे नहीं है। मगर मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तहज्जुद गुजार है, वो तक़वा शिआर है। अगर आपके गुलाम में ये खूबी है तो वो आपका गुलाम ही हो सकता है, वो आपका नौकर ही हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, वो आपका गुलाम ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। समझ गए नूह जस्टिस, लगता है मेरी बेटी मेरे गुलाम की बात कर रही है। वो सोचने लगे, या अल्लाह, अपने गुलाम से कैसे शादी कराएंगे, अपने नौकर से अपनी बेटी की शादी कैसे कराएंगे। मैं कहा अपने वक्त का बहुत बड़ा धनी, अपने वक्त का मालदार मेरे लेवल का है भी नहीं, ये तो मेरा गुलाम है, ये तो मेरा नौकर है, ये तो मेरी गुलामी करता है। वो कहने लगा, मेरी बेटी ये तेरा नौकर न है, ये तेरा गुलाम न है, ये तेरा चाकर न है, ये तेरे कपड़े धुला करता है, तेरे बर्तन धुला करता है, तेरे काम आया करता है, तेरे इशारे पे गर्दिश किया करता है, तेरे पीछे पीछे चला करता है, ये तेरा नौकर है। बेटी तू उसे गुलाम को अपना शौहर कैसे बनाना चाहती हो? वो कहती है, ऐ मेरे अब्बू, तू उसकी गुलामी देख रहे हो, तू उसकी गुलामी देख रहा है, तू उसकी चाकरी देख रहा है, तू उसके कपड़े के धुलने को देख रहा है, तू उसके बर्तन मलने को देख रहा है। ऐ मेरे अब्बू, तेरी नजर कुछ और देख रही है, मेरी नजर कुछ और देख रही है। ऐ मेरी बेटी, वो तो बड़ा गरीब है, वो तो निहायत गरीब है, वो तो मफलूकुल हाल है, वो इंसान मफलूक है, वो इंसान मुफलिस है, वो इंसान लाचार मजबूर है, वो तो तेरा गुलाम है। ऐ मेरी बेटी, उसकी गरीबी नहीं देख रही हो, उसकी मुफलिसी नहीं देख रही हो, उसकी लाचारी नहीं देख रही हो। अल्लाह अकबर। जवाब सुनो, ऐ मेरे अब्बू, आपकी नजर उसकी गुर्बत पे है और मेरी नजर मुबारक पे उतरने वाली खुदा की रहमत पे है। खुदा की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आपकी नजर उसकी गुर्बत देख रही है, मेरी नजर खुदा की रहमत देख रही है। अल्लाह। ए बेटी, तो तेरा अटल फैसला? हाँ अब्बू, मेरा फैसला यही है, गुलाम है तो है। मेरी बेटी
غلام تو غلام ہے نا، نوکر تو نوکر ہے نا. سماج میں غلام کا ہونا عیب مانا جاتا ہے، نوکر کا ہونا عیب مانا جاتا ہے. اگر تیری شادی میں نے نوکر سے کرا دی، اپنے غلام سے تیری شادی کرا دی، تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ میری بیٹی، میرے نام پہ لوگ تھو کریں گے. اے میری بیٹی، مجھے سماج میں عزت ہے، میری سماج میں عزت ہے. تم اپنے ایک نوکر سے شادی کی بات کر رہی ہو. بیٹی جواب دیتی ہے، ابو اگر سماج میں غلام کا ہونا عیب مانا جاتا ہے تو اپنا غلام کو غلام سے آزاد کر دو، مگر شادی نمازی سے کرا دو، شادی نبی کے غلام سے کرا دو. اپنے غلام کو غلامی سے آزاد کر دو، پھر میری شادی نبی کے غلام سے کرا دو. سبحان اللہ. سوچنے لگے، سر نیچے کر لیا. ابو کیا سوچ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ 5 منٹ ٹائم دیں گے آپ؟ سبحان اللہ. کیا کہا ابو؟ کیا سوچ لگے ہیں؟ بیٹی سوچ رہا. ابو سوچ لیجئے، آپ ہر دن کچہری میں فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ ہر روز لیتے ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں. اور جب سوچتے نہیں ہیں تو فیصلہ کبھی صحیح ہوتا ہے، فیصلہ کبھی غلط ہوتا ہے. کبھی صحیح فیصلہ ہوتا ہے، کبھی غلط فیصلہ ہوتا ہے. ابو آج کا فیصلہ غلط نہیں ہونا چاہیے. آج کا فیصلہ سمجھ لیجئے تو کیجئے گا، سوچ لیجئے تو فیصلہ کیجئے گا. بہت سوچ سمجھ کے آج فیصلہ کیجئے گا. سر اٹھایا نوح جسٹس نے اور مسکرا کے کہا، بیٹے میں نے فیصلہ لے لیا. کہا ابو کیا فیصلہ لیا؟ کہا بیٹی جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. کہا اے بیٹی اب میں آزاد کرتا ہوں. آواز دیا مبارک. غلام نے اپنے آقا کی طرف پلٹ کے دیکھا، نظر سے نظر ملی، یقین نہیں آ رہا تھا. لہجہ بدلا ہوا تھا نا، تیور بدلا ہوا تھا نا، گفتگو کا انداز بدلا ہوا تھا نا. پلٹ کے کہا، آقا آپ نے مجھے بلایا کیا؟ آپ نے آواز دیا کیا؟ ہاں میرے مبارک میں نے بلایا ہے، قریب آؤ. قریب آئے. کہا مبارک جا، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. مبارک رونے لگتا ہے، اے میرے آقا کیا خطا کر دی میں نے؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کیا گناہ مجھ سے ہو گیا جو غلامی سے آزاد کر رکھے ہیں؟ کوئی خطا تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر دیا ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے. کہاں جاؤں گا؟ پوری زندگی تو آپ کے قدموں میں گزار دیا ہے. اب آپ مجھے اپنے قدموں سے نکال کیوں رہے ہو؟ آپ اپنے گھر سے مجھے نکال کیوں رہے ہو؟ غلامی سے آزاد کیوں کر رہے ہو؟ کیا آپ کو میری غربت کا خیال لگے ہے؟ اگر آپ نے اپنی غلامی سے نکال دیا تو میرا چولہا کیسے جلے گا؟ میری روزی کا انتظام کیسے ہوگا؟ نوح جسٹس نے جواب دیا، اے میرے غلام میں تیرا آقا ہوں، آقا کو اختیار ہے، جب چاہے اپنے غلام کو وہ آزاد کر دے. اے میرے مبارک میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا ہے، تیرا رزق بند ہو اس کی بات نہیں کیا ہے، تیرا چولہا نہ جلے میں نے اس کی بات نہیں کیا ہے. میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے، چولہا تیرا جلتا رہے گا اور رزق کا انتظام ہوتا رہے گا. آزاد کر دیا. مسکراتے ہوئے مبارک غلام آگے بڑھا. وہ 4 قدم آگے بڑھا تھا، پھر آواز دیا، اے مبارک. پلٹ کے پھر دیکھا اپنے آقا نوح جسٹس کی طرف. آقا اب کیا فرمان جاری ہونے والا ہے؟ اب کون سی نئی بات پیدا ہوگی؟ اے میرے آقا اور کچھ فرمانے والے ہیں. ہاں مبارک ذرا قریب آؤ. قریب آئے تو کہا، اے مبارک میری بیٹی فاطمہ سے شادی کر لے. کہا میں سمجھ رہا تھا آپ میری غربت کا مذاق اڑائیں گے، اسی لیے میری غلامی سے مجھے آزاد کیا تھا. آپ میری لاچاری کا مذاق اڑائیں گے، آپ میری غربت کا مذاق اڑائیں گے. کہا آپ کی بیٹی فاطمہ فرش مخمل پہ چلنے والی، کہا ایک غریب، آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رکھے ہیں. کہا ایسی شادی ہوگی، ایسا تو کہیں رشتہ ہی نہیں ہوا ہے. آپ کی بیٹی سے شادی نہیں. میرے غلام میں تیری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں. اے میرے آقا اگر یہ بات سچی ہے تو فاطمہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں رہے گے. میرے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، پھوس کا چھپر ہے، میرے پاس کوئی بیڈ نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پہ میں زمین پہ
लेट जाया करता हूँ। मेरी गुर्बत फातिमा ने नहीं देखा है। फातिमा मेरे घर कैसे रह सकती है? कोई मेल की नहीं है, कोई मेल की नहीं है, कैसे ये रिश्ता निभ सकता है? कहा वो तो बात अलग की है, मगर फातिमा ने तुझे पसंद किया है। कहा अगर फातिमा ने मुझे पसंद किया है तो बुलाइए फातिमा को, मैं फातिमा से बात कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। जब फातिमा को बुलाया गया है, ए फातिमा बताओ, तुमने मुझसे शादी का फैसला सचमुच कर लिया है? हाँ मैंने सचमुच फैसला कर लिया है। आखिर क्या मामला है? मैं तो तेरा गुलाम हूँ ना, मैं तेरा नौकर हूँ ना, तेरे कपड़े धुला करता हूँ, तेरे बर्तन साफ किया करता हूँ, तेरे काम किया करता हूँ। मैंने तेरी गुलामी में जिंदगी गुजार दी है, क्या तूने मेरी गुर्बत नहीं देखा है? सोने के लिए पेट भी लगी है, आराम के लिए मेरे घर तेरे लिए बिस्तर भी लगी है, मेरे घर तेरा बसेरा कैसे हो सकता है? क्या तूने मेरी गुर्बत नहीं देखा है? जवाब देती है, ए मुबारक, तेरी नजर तेरी गुर्बत पे है, मेरी नजर तेरे तकवे पे है, मेरी नजर तेरी तहज्जुद गुजारी पे है। गुर्बत देख रहा है, मैं तेरी तहज्जुद गुजारी देख रही हूँ, तेरी तकवा शारी देख रही हूँ। तुझसे अमीर कौन हो सकता है? तुझसे बड़ा रईस कौन हो सकता है? ऐ फातिमा अगर ये बात है तो चल फिर मैं राजी हूँ। निकाह की मजलिस सजती है, अब खत्म कर रहा हूँ। निकाह की मजलिस सजती है और निकाह के बाद फिर महफिल इख्तिताम के मंजिल से गुजरती है, रुखसती होती है फातिमा की। कौन फातिमा? नूह जस्टिस की बेटी फातिमा, एक रईस की बेटी। रुखसत हो रही होती है, रुखसत अपने बाप के घर से चली है, एक गरीब मुबारक के घर पहुंचती है। रात का वक्त है, आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूँ। अब आप मेरा जुमला मिस मत होने दीजिएगा। उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं चाहता हूँ मैं। रुखसती को भी घर पहुंचती है फातिमा, अपने घर पहुंच जाती है। बाप के घर से चली, अपने घर पहुंच गई। रात का वक्त है, फातिमा टूटी चटाई पर लेटी अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अब आएगा मेरा शौहर, अब आएगा मेरा दूल्हा, अब आएगा मेरी जिंदगी का साथी, हक़ ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। शादी की पहली रात का जो मंजर होता है, जो कशिश और जो इंतजार के लम्हे होते हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, इंतजार कर रही है। मुबारक है तहज्जुद गुजारी में लगा है, मुबारक है कुरान की तिलावत में लगा हुआ है, मुबारक है दो गाना अदा करने में लगा है। आधी रात गुजरने के बाद अपनी बीवी के करीब पहुंचा, बगल में लेट जाता है, टूटी चटाई है, इंतजार कर रही है। अब हक अदा किया जाएगा, हक़ ज़ौजियत अदा करेगा, अब दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। मगर क्या बताऊं, प्यार मोहब्बत की बातें चलती रही, रात बातों बातों में खत्म हो जाती है। सोचा फातिमा ने शायद मेरा शौहर बड़ा थका मांदा था, आज शादी की पहली रात थी, थका मांदा शौहर था, इसलिए हक अदा न किया। आने वाली जो रात है वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। दूसरी रात का इंतजार करती है फातिमा, फिर अपने बिस्तर पे चटाई पे लेट जाती है, अपने शौहर का इंतजार करती है। मगर वो कुरान की तिलावत में लगा है, तहज्जुद गुजारी में लगा है, तक़वा शिआरी में लगा है, कुरान की तिलावत में लगा है। आधी रात गुजरने के बाद बिस्तर पे पहुंचता है, बीवी इंतजार करती रही, बातों बातों में फिर रात खत्म हो जाती है। हक अदा न किया, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हुआ। फातिमा ने फिर अपने दिल को संभाला, शायद बहुत थका था इसलिए आज फिर हक अदा न किया। आने वाली जो तीसरी रात है वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। इंतजार करती है, तीसरी रात आती है, बिस्तर पे लेटे लेटे इंतजार कर रही है, अब मेरा दूल्हा आएगा, अब मेरा शौहर आएगा, अब मेरी जिंदगी का साथी आएगा, हक़ ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। मगर रात आधी गुजरने के बाद फिर मुबारक पहुंचता है, बातों बातों में रात खत्म हो जाती है। बात समझ पे नहीं आती, फलसफा समझ पे नहीं आता,
दूसरी तीसरी चौथी रात गुजर गई, पांचवी आई वो भी गुजर गई, छठी रात आई वो भी गुजर गई, सातवीं आठवीं आई वो भी चली गई, नवीं रात आई वो भी चली गई, 10वीं रात आई वो भी गुजर गई, 11वीं रात आने वाली है। शुदा शुदा बात नूह जस्टिस तक पहुंच जाती है कि मेरा दामाद मेरी बेटी से मिलता लगी है, मुबारक अपनी बीबी का हक अदा करता लगी है। उन्हें जलाल आया, गुस्सा आया, ख्याल ये भी आया, मुझको पता था कि गरीब के साथ मेरी बेटी का बसर नहीं हो सकता है, मगर उसे राज तो मालूम नहीं था। अपने दामाद का तलब किया, दामाद को तलब किया, मुबारक को बुलाया गया। मुबारक नूह जस्टिस की खिदमत में पहुंचे। पेश भी है, मेरे खुसरू जी, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे तलब किया है। हाँ, मैंने बुलाया है। ए मुबारक, मुझे एक बात बताओ, मुझे तो पहले ही से इस बात का अंदेशा था, तुम दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। तुम गरीब हो, मेरी बेटी फर्श मखमल पे रहा करती है, तुम्हारे घर में उसे सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर में उसे करार नहीं मिलेगा, ये रिश्ता बरकरार नहीं रह सकता है। मगर अब तुम खुद अपनी जुबान से बताओ, आखिर माजरा क्या है? क्या मेरी बेटी अच्छी नहीं लगती? क्या मेरी बेटी अच्छी लगी है? क्या वो खूबसूरत लगी है? क्या वो हसीन लगी है? क्या वो नमाजी लगी है? क्या तेरी खिदमत नहीं करती है? क्या वो तहज्जुद अदा नहीं करती है? क्या वो कुरान की तिलावत नहीं करती है? आखिर कमी क्या है मेरी बेटी में जो उसका हक अदा नहीं करता, जो अब तक उसे नहीं अपनाया? नूह जस्टिस के दामाद का जवाब सुनो। ऐ मेरे खुसरो साहब, सुनिए, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ कि ऐसी बीवी मुझे मिली है। मैं भी लाजवाब, आपकी बेटी भी लाजवाब, कहीं से कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी तकवा शिआर भी है, तहज्जुद गुजार भी है, कुरान की तिलावत का आदी भी है, नमाज का पाबंद भी है, कुरान की तिलावत भी करती है, मेरी खिदमत में भी लगी रहती है, कहीं से कोई कमी नहीं। ऐ मेरे मुबारक, फिर बताओ तो फिर हक अदा क्यों नहीं करता? अब जवाब सुनो नूह जस्टिस के दामाद का, मुबारक का जवाब सुनो। ऐ मेरे खुसरो साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, आपका ओहदा बड़ा ऊंचा, आपका पोस्ट बड़ा ऊंचा, आपका मनसब बड़ा ऊंचा, आप कचहरी में रहते थे, आप फैसला करते थे, आप कचहरी में जब फैसला लेते थे, फैसला कभी सही होता, फैसला कभी गलत होता, कभी लोग हलाल तरीके से पैसे देते, कभी हराम तरीके से देते, कभी नाजायज तरीके से पैसा आता, कभी जायज तरीके से पैसा आता। आपके घर में जो माल है, आपके घर में जो दौलत है, वो हलाल है तो हराम भी है, जायज है तो नाजायज भी है, मगर मेरे घर में नाजायज नहीं है, मेरे घर में हराम नहीं है। मैं आपके घर मेहनत करता, पसीने बहाता, जितनी मेहनत करता, मजदूरी करता, उतनी कीमत लेके घर जाता। मेरे पास जो पैसे हैं, जो कमाई मेरे घर है, वो सुथरी कमाई है, वो पाकीज़ा कमाई है, वो पसीने की कमाई है, वो मेहनत की कमाई है, वो हलाल कमाई है। मेरे घर में हराम कमाई नहीं है, मेरे घर में नाजायज कमाई नहीं है। आपके घर जायज है तो नाजायज भी है, आपके घर अगर हलाल है तो हराम भी है। शरीयत का फैसला सुन के, हुकूमत इस्लाम का फैसला सुन के, शरीयत का कानून सुन के, आपकी बेटी आपके घर रख के जो खाती थी, वो हलाल खाती थी तो हराम भी खाती थी, जायज खाती थी तो नाजायज भी खाती थी। जब तक आपके घर रखी, आपकी बेटी हराम भी खाती थी, हलाल भी खाती थी, मगर आपके घर से जब मेरे घर गई है, अब वो हराम नहीं खाती, अब वो नाजायज नहीं खाती, अब वो हलाल खाती है, अब वो पाकीज़ा कमाई खाती है, अब वो पसीने की कमाई खाती है, अब वो नाजायज नहीं खाती, अब वो सुथरी कमाई खाती है, अब वो हलाल कमाई खाती है। शरीयत का कानून ये है कि जब किसी के हलक के नीचे हराम लुक़मा उतर जाता है तो उसका असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। आपकी बेटी ने आपके घर रख के जो हराम लुक़मा खाया है, अभी उसका असर बाकी है। अभी तो 10 रातें गुजरी हैं, अभी हराम लुक़मे का असर बाकी है। अब मेरे घर गई है, हलाल खा रखी है, जायज खा रखी है, सुथरी कमाई खा रखी है। अभी 10 रातें गुजरी हैं, अभी 10 गुजरी है, 11 भी गुजरेगी, 12 भी गुजरेगी, 30 भी गुजरेगी, 39 भी गुजरेगी। जब 40 रातें गुजर जाएंगी, 40 रातें गुजर जाने के बाद हलाल लुक़मे का, हराम लुक़मे का असर जब खत्म हो जाएगा, तब मैं अपनी बीवी का हक अदा करूंगा, तब मैं अपनी बीवी का हक अदा करूंगा, तब तो पाकीज़ा दिलों
नबीयों का मिलन होगा। और जब हराम लुक्मा असर खत्म होने के बाद हक की ज़ौजियत अदा करूंगा, तब नुत्फा करार पाएगा। फिर 9 महीने गुजरेंगे, 9 महीने गुजरने के बाद फिर बेटा पैदा होगा। और जब बेटा होगा तो बेनमाजी नहीं होगा, पैदा होगा तो तहज्जुद गुजार होगा, तक़वाशार होगा, वक्त का नमाज़ी होगा, वक्त का वली कामिल पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जो वक्त मिला था उससे 10 मिनट ज्यादा हो गया, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, बात भी मुकम्मल नहीं हो पाई है, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ किसी नतीजे पर पहुँचा करके। हजरत ग्रामी, जब 9 महीने, जब 40 रोज गुजरे, हक अदा किया गया, नुत्फा करार पाया, फिर 9 महीने फातिमा ने अपने बतन में उस बच्चे को संभाला। और 9 महीने गुजरने के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ। पूरा मतलब बोलिए, एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। कौन अब्दुल्ला? फातिमा का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? मुबारक का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिसके बाप ने फातिमा को हलाल खिलाया वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिसकी माँ ने हलाल खाया वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? दुनिया जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है, ये वही मुबारक का बेटा है, ये वही मुबारक का बेटा है। दुनिया जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है, अपने वक्त के बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। अगर मैं चाहूं तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जिंदगी का एक लम्हा आपके सामने बयान करूं कि हलाल लुक़मे का असर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जिंदगी पे क्या पड़ता है। दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मगर मैं बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि हलाल लुक़मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़मे का असर बुरा होता है। मगर हो सकता है कल कोई मुझसे सवाल करे, मौलवी अगर हलाल लुक़मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़मे का असर बुरा होता है, तो नूह जस्टिस की बेटी फातिमा ने अपने बाप के घर को हराम खाया था, वो तो नाजायज खाया था। फिर फातिमा इतनी अच्छी कैसे हो गई, तहज्जुद गुजार कैसे हो गई, तक़वा शिआर कैसे हो गई। हराम खिलाने वाला बाप फिर बेटी तक़वा शिआर कैसे हो गई। तो एक जुमला आपके लिए मैं आपके सामने पेश करके रुखसत होता हूँ। हज़रात, सच्चाई तो यही है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की माँ फातिमा अपने बाप नूह जस्टिस के घर रह के वो नाजायज और जायज दोनों खाया था। नूह जस्टिस ने अपनी बेटी को नाजायज तो खिलाया था, मगर एक अच्छा काम किया था, अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था। वहाँ हराम लुक़मे का असर मग़लूब हो गया, फातिमा के नाम का असर गालिब हो गया। फातिमा के नाम का असर था कि वो तहज्जुद गुजार हो गई। हम तो अपनी बच्ची का नाम भी फातिमा नहीं रखते, हम तो पिंकी रिंकी रखते हैं। हज़रात, परहेज कीजिए इन नामों को रखने से। अपनी बेटी का नाम फातिमा रखिए, फातिमा रखिए, ज़ैनब रखिए, उम्मे कुलसूम रखिए, तो फिर आपकी बेटी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद गुजार होगी, तक़वा शिआर होगी। मैं आपसे ये कह के रुखसत होना चाहता हूँ, नौजवान दोस्तों, हलाल लुक़मा खुद मेहनत की कमाई से हासिल कीजिए, खुद भी हलाल खाइए, अपने बच्चों को हलाल खिलाइए और हराम से बचिए, ताकि आपके बच्चे रास्ते से बिगड़ न सके, रास्ते से बहक न सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आप हलाल लुक़मा खाएंगे तो तबलीग की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सच बोलो, नमाज पढ़ो, जुगलखोरी मत करो। हलाल लुक़मे का असर ये होता है, हलाल लुक़मा खुद ही तबलीग करता है। जो हलक के नीचे हलाल लुक़मा उतरेगा तो वो खुद ही नमाजी बना देगा इंसान को। हलाल लुक़मा खुद ही इंसान को शरीयत का पाबंद बना देगा। हलाल लुक़मा खुद ही इंसान को राह रास्त पे ला देगा। इसलिए हलाल खाने की ज़रूरत है। इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की अहमियत ये है कि रिज़्क़ हलाल खाओ और अक्ले हलाल और सिद्क़े मकाल, सच बोलते जाओ, हलाल खाते जाओ। एक न एक दिन इंशाअल्लाह हम
ہم غوث تو نہیں بنیں گے، غوث کے غلام ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو کچھ کہا کہیں پر کہنے میں کوئی لفظ کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میری توبہ کو قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔